Hello and welcome back. It's day 4 of 30 days challenge. Today we'll finish the entire security topic of GS3. First, we shall discuss some important subheadings under the topic various security forces and agencies and their mandate, and then we'll move on to the questions. First is CCS, that is Cabinet Committee on Security. It is the apex body for executive actions on the matter of national security. Then CCS is responsible for political oversight and decision making on national security, ensuring the democratic principles of civilians and political control of the apparatus is upheld. Then both National Security Council and CCS have a common membership which helps in the easier decision making and implementation. And who is the chairman of Cabinet Committee on Security? It is the Prime Minister. Then we'll discuss about ITC, that is Integrated Theatre Command. Then what is CDS, Chief of Defence Staff, and then about CAPF. Now, what is Integrated Theatre Command? It envisages a unified command of three services under a single commander, that is CDS, for geographical theatres that are of security concern. So इसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हो. This I have taken from Vision IAS. So all credits to Vision IAS. Then what are the arguments for? First, resource efficiency, optimum utilization of available resources. Second, growing threats and challenging warfare, so we require a integrated command. Third, quick decision making. Fourth, coordinated response. Fifth, better procurement according to the required scenario, and it will also result in combat efficiency. For example, in nations like US and China, they have integrated command. Now the arguments against or challenges are that India is not geographically large enough to be divided into large theaters. Okay. Second, there is shortage of military infrastructure. For example, only 34 out of 45 squadrons present, so dividing already scarce resources infeasible. Third can be, I have written over here, that there is inter-services friction and it's opposed by Indian Armed Forces. Then limited domain knowledge. Next point can be operational hurdles and financial constraints. Now Chief of Defence Staff, that is CDS, इसमें दो committees बहुत important हैं. First is Kargil Review Committee in 2021 that recommended creation of CDS, and the other is Shekatkar Committee. So you can mention these in your answers. CDS was created to increase efficiency and coordination among the armed forces and reduce duplication. Aimed to achieve better results at all levels through effective coordination between armed forces and civil services. It helped facilitate inter-service integration, better civilian-military coordination. Third, strengthens the process of joint planning, operation, procurement. That is by making it effective and efficient. This does not exercise any military command, including over the three services chiefs, so as to be able to provide impartial advice to the political leadership. Now duties and functions we have already seen, that is head the Department of Military Affairs, to act as a principal military advisor to Defence Minister on all tri-services matter, to function as a permanent chairman of the Chief of Staff Committee, to be a member of Defence Acquisition Council, and function as the military advisor to the Nuclear Command Authority. Next is to ensure optimal utilization of infrastructure. Now challenges for CDS, and यहाँ पे mention किए हैं. Navigating the complex reforms like creating ITC, that is Integrated Theatre Command. Second, managing the inter-services conflict. Third, ensuring budget allocation for technological upgrades. Fourth, balancing political bureaucratic dynamics. अब इसमें एक दो इश्यूज़ ये हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इट हैज़ डोमिनेशन ऑफ द आर्मी, क्योंकि CDS हमेशा जनरली ये ट्रेंड रहा है कि आर्मी का ही
ऑफिसर होते हैं. Now the international practices also support this, that major countries like Italy, France, China, UK and USA have created the post of CDS to bring more jointness and integration in their armed forces. Now moving on to the CAPF, that is Central Armed Police Forces. There are 7 Central Armed Police Forces operating under the Ministry of Home Affairs. इसमें से 4 जो हैं वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होती हैं, दैट इज़ BSF, असम राइफल्स, ITBP, SSB. BSF जो होता है वो इंडो पाकिस्तान इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को देखता है. असम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर को देखता है. ITBP इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, दैट इज़ इट लुक्स आफ्टर इंडो चाइना बॉर्डर. SSB देखता है इंडो भूटान एंड इंडो नेपाल बॉर्डर. देन स्पेशल ऑपरेशन का NSG होता है, इसमें हर फोर्स से लोग रिक्रूट होते हैं. देन इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं 2 फोर्सेस, दैट इज़ CISF एंड CRPF. मैंने जो डैब भरा है उसमें मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है CISF एट द टॉप, देन SSB, देन CRPF, then ITBP and then BSF. Guys, all of these forces are pride of the nation, और इसमें से किसी में भी सेलेक्ट हो जाना एक प्राउड मोमेंट की बात होती है, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा, आपको नेशन को सर्व करने का मौका मिलेगा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट चॉइसेस दी गई थी तो चॉइसेस भर दी गई, वरना इसमें से किसी में भी सिलेक्शन अपने आप में एक प्राउड, मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा. गाइज़, ये मेरे नोट्स हैं, हम CAPF के बारे में ही देखेंगे, बट हम मेरे नोट्स से देखेंगे. और अगर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे अलग से बतानी रहेगी मैं आपको बताऊंगा. और बाकी UPSC के लिए, UPSC CSE के मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक CAPF के बारे में नहीं पूछेगा. जैसे फॉर एग्जांपल BSF पे पूछ लिया या CISF पे पूछ लिया या CRPF पे पूछ लिया, जब तक कोई मेजर करंट न्यूज़ ना बन जाए वो चीज़. बाकी इट कैन आस्क अबाउट कंबाइंड CAPF कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ऐसे करके, या फिर उसका मैंडेट. बट एवरीथिंग कम्स अंडर द सिलेबस. सो वरना जनरली अगर कोई स्पेसिफिक फोर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है तो उसके पूछने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं. सो बट हम फिर भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट. The majority of external security threats in India are managed by Ministry of Defence with the help of Ministry of Home Affairs. Internal security threats such as insurgencies, separatism and riots are primarily managed by Ministry of Home Affairs. Security forces, Indian Armed Forces, then paramilitary forces, then Central Armed Police Force, that is CAPF. इंडियन आर्म फोर्सेस में सुप्रीम कमांड ऑफ इट इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पावर्स डिस्चार्ज करता है. तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस आती हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी and Indian Air Force. These are part of Indian Armed Forces. Indian Army became operational after the country gained independence from British colonialism. Functions under Chief of Army Staff. इसका मैंडेट क्या है? Committed to defense external and internal threats both, और aids during disaster. For example, Operation Surya Hope, Operation Megh Rahat. also in UN peacekeeping मिशन में भी होती हैं. ठीक है. इंडियन नेवी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन 1934 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर द कमांड ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. इसका मैंडेट क्या है? हाई इंटेंसिटी वॉर फाइटिंग टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. ओके. देन इंडियन एयरफोर्स, इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932. तो इंडियन एयरफोर्स कब सेटअप हुआ? 1932 में. इंडियन नेवी कब सेटअप हुआ? 1934 में. ओके. एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. लास्ट डेकेड में इसमें फिनोमिनल चेंजेस आए हैं कुछ, जैसे कि विमेन असिस्टेंस टू आर्मी एंड नेवी,
सीमलेस इंटीग्रेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसका ऑपरेशन गंगा हम मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपको अगर याद हो तो बताना कब ऑपरेशन गंगा हुआ था। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जनरली 3 आते हैं, दैट इज़ असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। असम राइफल को बोलते हैं ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पैरा। 46 बटालियंस अंडर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। इनका काम होता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड दे ऑल्सो होल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। देन इंडियन कोस्ट गार्ड established in 1978 under the Ministry of Defense. Safety and protection of artificial islands and offshore terminals, protection of fishermen and assistance to them, then preserve and protect marine environment, prevention and control of marine pollution, anti-smuggling also. Okay, then there is a special frontier forces established in 1962 in the backdrop of Sino-Indian War, covert operations behind Chinese lines under direct supervision of रॉ। ये रॉ के अंडर डायरेक्टली काम करता है। नाउ लेट्स कम टू CAPF। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज़ BSF। BSF फॉर्म हुई थी 1965 में, इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इनफैक्ट इन सभी को, दैट इज़ ऑल द CAPFs आर हेडेड बाय IPS। तो ये केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम देखेंगे इसके बारे में। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज, प्रिवेंट्स ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स एंड अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रिवेंट्स स्मगलिंग। अब देखो, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम सारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के बारे में लिख सकते हैं कि उनका काम सिर्फ लड़ाई करना नहीं होता है, दे ऑल्सो प्रमोट डिप्लोमेसी, जैसे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दे अंडरटेक सिविक एक्शन प्रोग्राम जहाँ पे उनको हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस जनरेशन, ये सब करवाया जाता है ताकि मतलब बहुत ही पीपल फ्रेंडली होते हैं, ताकि उनको लोगों का सपोर्ट रहे हमेशा। अब हम देखते हैं CISF। इट वॉज रेज्ड इन 1969। BSF कब हुआ था? 1965। CISF gives security cover to nuclear installation, space establishment, airports, seaports and power plants. दिल्ली मेट्रो को भी CISF देखता है। CISF का काम इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो वॉर है आजकल, वॉर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हो रहा है और सिर्फ गोली बंदूक से नहीं हो रहा है। किसी भी कंट्री का कोई इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक या स्ट्रैटेजिक इस्टेब्लिशमेंट है, उसको अगर हार्म पहुंचा दी गई तो उससे कितना इकोनॉमिक और कितना नुकसान हो सकता है, तो वो दैट इज़ मोर डेंजरस दैट। अब जैसे इंडिया का कोई महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम है तो उसको इनको सैबोटाज करना है, तो उसमें इंडिया का कितना करोड़ों का नुकसान हो सकता है, हज़ारों करोड़ों का नुकसान, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा। एंड सेकेंडली, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है कि वहाँ पे कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी ख़राब आई, तो जो रेडिएशंस है वो कितने लोगों को कितना हार्म पहुँचा सकती है, ये हमने चेरनोबिल में देख लिया है, हमने जापान का फुकुशिमा में देख लिया है। तो इनको सिक्योरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CISF की ट्रेनिंग भी वैसी होती है, सिर्फ उनकी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स में ही नहीं, उनको मतलब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है वो भी दिखाते हैं, वो भी मतलब उनको सिखाया जाता है। इसमें एक मेजर अपडेट भी है, जैसे कि सबको पता है इंडियन पार्लियामेंट में घुसपैठ हुई थी, कुछ 1-2 लोग अंदर घुस गए थे। इट वाज अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। उन्होंने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने बस स्मोक के कैंस वहाँ पे जाके बर्स्ट कर दिए थे और प्रोटेस्ट। तो पहले जो इंडियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कौन देखता था, तो CRPF देखता था और PSS देखता था, जो कि दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल था फॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो उसके ब्रीच के बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि पार्लियामेंट की जो एंटायर सिक्योरिटी है वो CISF को दे दी गई थी। सो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट यहाँ पे। और जैसे कि एयरपोर्ट्स पे जो स्मगलिंग होती है तो वहाँ पे भी CISF एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिमिनिश या नलीफाई करने के लिए। अब हम देखते हैं CRPF।
CRPF was raised as a Crown Representative Police in 1939. ये बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है एंटी नक्सल ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, UN पीस कीपिंग के लिए भी इसको भेजते हैं। और इसमें एक बहुत ही एलीट फोर्स दैट इज़ कोबरा कमांडोज रहते हैं, आपने सुना होगा, टू काउंटर माओइस्ट इंसर्जेंट्स। आउट ऑफ ऑल द फोर्सेज आई हैव हर्ड दैट CRPF की ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, बिकॉज उनकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फोर्सेज। बट अगेन इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया। CRPF के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इट इज़ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री विच हैज़ 6 महिला बटालियन, दैट इज़ लेडीज़ बटालियन। नाउ कम्स ITBP. It was established in 1962 in the wake of Chinese aggression. ये बहुत ही स्पेशली ट्रेंड होते हैं, गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स उसको बोलते हैं। सो दे आर अकस्टम्ड, दे आर ट्रेंड टू फाइट at the altitude range between 9,000 feet to 18,750 feet. इसका जो मैंडेट है, it is vigil on the northern borders. It provides a sense of security to the local population, checks illegal immigration, trans-border smuggling and crimes. It gives security to sensitive installation, banks and protected persons, and restores and preserves order in any area in the event of disturbance. और ITBP जो होती है वो जो पिलग्रिम्स होते हैं, जैसे कि मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा को भी सिक्योरिटी कवर देता है, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट की नज़र होती है कि कैसे उस चीज़ को हैम्पर किया जा सके। देन पीस कीपिंग मिशंस में भी इनको भेजा जाता है, फॉर एग्जांपल अंगोला, नामीबिया, कैम्बोडिया, बॉस्निया, मोज़ाम्बिक एक्सेट्रा। और इनका एक अचीवमेंट था कि इन्होंने सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर वर्ल्ड का बनाया था ड्यूरिंग कोविड-19 इन छतरपुर, न्यू दिल्ली। यहाँ पे 10,000 बेड्स इन्होंने अरेंज किए थे। देन वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ITBP इज़ दैट सारे एस्पिरेंट का जो सपना होता है लबासना, उसको सिक्योरिटी कवर ITBP देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो गिव्स सिक्योरिटी कवर टू राष्ट्रपति भवन। देन SSB was established in 1963 in the wake of India-China conflict of 1962. So इसका काम बेसिकली था कि तो उस टाइम पे ये इंटेलिजेंस गैदर करती थी और बाकी फोर्सेस को सपोर्ट करती थी अपनी इंटेलिजेंस से। बट इन 2001 इट बिकेम अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका नाम भी बदल दिया गया, पहले इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, एंड इन 2001 इसका नाम चेंज करके SSB रखा गया, सशस्त्र सीमा बल। देन अगेन इसके फंक्शन होते हैं कि विजिल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द लोकल पॉपुलेशन, प्रिवेंट्स ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, स्मगलिंग एंड एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज़, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू और एग्जिट, एंड कैरी आउट सिविक एक्शन प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जिस बॉर्डर पे रहते हैं SSB, दैट इज़ इंडो नेपाल, इंडो भूटान, दे आर पोरस बॉर्डर्स। ऑल्दो इंडिया बांग्लादेश भी पोरस बॉर्डर है, बट ये बहुत ही फ्रेंडली बॉर्डर्स हैं, नेपाल एंड भूटान। और ये बात सबको पता है कि ये फ्रेंडली बॉर्डर्स हैं, तो इनका फ़ायदा अच्छे से उठाया जा सकता है। CIA, ISI एंड रॉ का यहाँ पे चूहे बिल्ली वाला गेम चलता रहता है। नाउ कम्स NSG. NSG was raised in 1986 to combat terrorism. This force is unique because it is the amalgamation of the selected personnel from armed forces plus CAPF plus state police. तो इसीलिए इसको ये भी बोलते हैं कि बेस्ट अमंग द बेस्ट्स। It is a federal contingency world class zero error force to deal with the anti-terrorist activities. क्रूशल रोल था इनका 26/11 मुंबई टेरर अटैक में। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में आपने सुना होगा, तो ही वॉज फ्रॉम NSG। और इनको ब्लैक कैट भी नाम दिया जाता है बिकॉज इनकी ड्रेस जो होती है कंप्लीट ब्लैक होती है, और इनकी ट्रेनिंग भी जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है बाकी सारी आर्म्ड फोर्सेस से। एंड इसमें भी चैलेंजेस हैं, हर जगह चैलेंजेस होते हैं, हमें बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना रहता है। तो NSG का एक कंप्लेन ये था कि when 26/11 occurred, so NSG took approximately 10 hours to respond. 10 घंटे लगे थे रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन अश्वमेध
जहाँ पे पालम एयरपोर्ट से इनको जाना था गुजरात में, तो दे वर स्टक इन ट्रैफिक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि कैसे अगर कोई इवेंट अगर होता है इन अर्बन सिटीज़, तो एनर्जी को डिप्लॉय करने के लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे मैनेज किया जाए। देन देर आर सम अदर फोर्सेज एज वेल, जैसे कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका मैंडेट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक इन रेलवेज। स्टेशन का जो इंफ्रा होता है एंड रेलवे प्रॉपर्टी, इसको गार्ड करना है। एंड वन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ द ओनली force of the union which has power to arrest, investigate and prosecute criminals. The second is NDRF. After Orissa super cyclone, Gujarat earthquake and Indian Ocean tsunami in 2024 led to the formation of the Disaster Management Act in 2005. So तभी NDRF का भी गठन हुआ था for the purpose of specialized response to natural and man-made disasters under MHA। ये भी MHA के अंडर में आती है। मैन बाई पर्सनस ऑन डेपुटेशंस फ्रॉम वेरियस CAPF। इसमें CAPF से लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। देन देर इज़ SPG। आफ्टर असैसिनेशन ऑफ PM इंदिरा गांधी in 1988, it was formed to give protection to PM and ex-PM of the country. This is under Cabinet Secretariat, sole responsibility of protecting the present and former PMs and their immediate family members. About CAPF, in the recent past, their importance has increased due to increased deployment and dependence of states on them. This has also brought to light several issues being faced by these forces. So the issues are, first is bureaucratization of armed police force. For example, जो IPS ऑफिसर्स होते हैं वो डेपुटेशंस पे आते हैं और टॉप ऑफ द हायरकी बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द पोजीशन ऑफ DGP एंड ADG इज़ मोस्टली हेल्प बाय IPS ऑफिसर्स। तो उस कारण से क्या होता है, इनके प्रमोशंस रुक जाते हैं। सो देर इज़ एन एक्यूट स्टैग्नेशन इन ऑल द कैडर्स ऑफ CAPF विच इन टर्न इज़ अफेक्टिंग द मोरल एंड एफिशिएंसी। सेकेंड इज़ एट पर्सनल लेवल there is high attrition rate. For example, the number of personnel opting out for voluntary retirement schemes in CAPF rose to around 450% in 2016 and 17. Then lack of promotional avenues, as we had discussed, कि IPS officers enjoy de facto monopoly on the leadership of forces despite having limited experience of leading them. It was only recently that CAPF personnel were granted non-functional accreditation, which is given to Group A organized services. Now, infrastructure-wise, what are the issues? Lack of effective arms and ammunition, such as bulletproof jackets, modern arms, surveillance equipment, and armored vehicle. And in the recent past, there has also been haphazard expansion of CAPF forces, which adds to the infrastructural burden. Then budget outlays, they are inadequate, and procurement process under modernization plan is also cumbersome and time consuming. Now there has also been some issue related to service conditions. For example, lack of stability, loneliness and domestic strife, क्योंकि इनकी postings बहुत ही prolonged होती हैं because of their mandate, and these forces are also burdened due to indifference of superiors, lack of timely sanctioned leave and basic medical facilities. Further, they work in harsh conditions without any standard rotation policy. Then there is absence of in-house grievance redressal mechanism. तो इसीलिए हमने देखा था कि 2017 में एक BSF का सिपाही he took to social media to express concerns. Then इसका way forward recommendations क्या हैं? First is ending IPS hegemony. Second is modernization of forces. This should be the utmost priority, as this force not only has to face any enemy from across the border but also the vagaries of the nature. जैसे कि ITBP होते हैं तो बहुत ही harsh conditions and बहुत ही high altitude पे उनकी posting होती है. Then other recommendation is issue specific counter plan rather than one size fits all approach.
For example, for Jammu and Kashmir, there should be a multi-pronged strategy that prevents youth from joining militancy, curbs their financing, and simultaneously launches counter-insurgency operations. And for the left-wing area, effort should be made to procure mine-resistant vehicle, जैसे वहाँ पे लैंड माइंस लगा देते हैं. So this could be done through import or domestic manufacturing under the Make in India program. The another recommendation is setting up dedicated research and development wing. Then security agencies in India. There are 3 security agencies in India. First is RAW, second is IB, third is NIA. तो RAW के बारे में मैंने विजन IAS से नोट्स बनाए थे, आप भी वहाँ से बना सकते हैं. यहाँ पे जैसे कि ये मेरे नोट्स हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो. अब जैसे IB है तो ये कंट्रोवर्सी में इसलिए भी था बिकॉज द एबिलिटी ऑफ द ब्यूरो टू वायर टैप फोन्स एंड लिसन इन ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट द नीड फॉर अ वारंट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मैनी एंड एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल सर्वेलेंस जिसकी मैं बात कर रहा था. देन NIA थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हर जगह NIA दिखती है. जैसे कि अभी जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें अगर आप फ़ोटोज़ देखें काउंटर एक्शन की, उसमें NIA की जैकेट पहने हुए लोग दिख रहे थे हर जगह. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द आफ्टर मैथ ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक. इट इज़ अंडर द jurisdiction of MHA. It is India's counter-terrorist task force. It does not require any special permission from states. And NIA, इसका mandate NIA Act 2008 है. इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है. काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड हर चीज़ दिखती है, उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, एक्सेट्रा. इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. देन इश्यूज़ इन फंक्शनिंग क्या है? लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज़. यहाँ पे जो डिपुटेशन पे लोग आते हैं उनके पास दे आर जैसे IPS एंड दे डो नॉट हैव डोमेन एक्सपर्टीज़. अब NIA का जो डोमेन है, फंक्शनिंग है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो उनका कैडर में वो काम कर रहे होते हैं, वो SP होते हैं. एक इशू है, लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं, बट मेनी IPS ऑफिसर्स आर द प्राइड ऑफ इंडिया. एंड गाइज, रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हमें आज करने थे डिस्कस, वो इस कंटेंट से हम आसानी से आंसर कर लेंगे. सो वीडियो ज़बरदस्ती लंबा नहीं करते हैं. एंड सो दिस इज़ द एंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी GS3. बाकी इसमें जो भी करंट अपडेट्स आएंगे वो इंक्लूड करने पड़ेंगे. एंड J&K एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इसमें आपके बेसिक नोट्स होंगे, उसको अच्छे से करना है. और बाकी करंट अपडेट जो आएगा वो अपन इंक्लूड कर लेंगे. अब कल से डिज़ास्टर मैनेजमेंट फिनिश करना है 2 दिन के अंदर. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. थैंक यू.